لوگ ایموشنلی کنیکٹڈ فیل کرتے ہیں ان کھیلوں کے ساتھ جو وہ کھیلتے ہیں یا دیکھتے ہیں، اور ان ایموشنز کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ ڈیپلی اپنے آپ کو اپنی پسندیدہ ٹیموں سے جڑا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ ورلڈ کپ، پی ایس ایل، آئی پی ایل، اولمپکس اور دیگر ورلڈ سپورٹس ایونٹ اس بات کی مثالیں ہیں کہ کس طرح کوئی صرف ایک کھیل میں اپنی پسندیدہ ٹیم یا کھلاڑیوں کو سپورٹ کرتے ہوئے کبھی خوشی محسوس کرتا ہے تو کبھی مایوسی کو، اور کبھی غصہ آتا ہے تو کبھی آنسو نکل آتے ہیں۔ کھیلوں کے ساتھ یہ جذباتی لگاؤ ڈفرینٹ برانڈز کے لیے اپنی آمدنی کو دگنا کرنے اور لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنانے کا ایک سنہری موقع ہوتا ہے۔ اس لیے وہ ایسے میگا ایونٹ کی اسپانسرشپ کی دوڑ میں کود پڑتے ہیں اور ایسے ایونٹس کو اسپانسرز کرنے کے لیے اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی پروڈکٹس کو جوڑ سکیں ود دا اسپرٹ آف کانٹیسٹ اینڈ ود دا اسپرٹ آف جوائے۔ السلام علیکم، میرا نام شہزاد احمد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لائٹن۔ یہ ویڈیو سپورٹس ایونٹ کو اسپانسرز کرنے کی اہمیت کا جائزہ لے گی اور نائکی کی سکسیس سٹوری پر روشنی ڈالے گی کہ کیسے نائکی نے اسپانسرشپ کی مد میں 1 روپیہ بھی خرچ کیے بنا غیر روایتی مارکیٹنگ کمپین فائنڈ یور گریٹنس کی مدد سے لوگوں کے دل جیتے، اور لندن اولمپکس 2012 میں ایسے نتائج حاصل کیے جو دوسرے برانڈز اربوں روپے اسپانسرشپ پر لگانے کے باوجود بھی حاصل نہیں کر پائے۔ اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھیں بند کریں اور ذرا اس بارے میں سوچیں کہ آخری بار آپ نے ایک پروفیشنل سپورٹس ایونٹ کو کب دیکھا یا اس میں شرکت کی؟ کیا آپ نے آؤٹ فیلڈ میں کسی بڑی کمپنی کے لوگوں کو دیکھا؟ کیا آپ نے ایونٹس کے دوران ویوو، ایچ بی ایل یا ٹویوٹا کے پیش کردہ ہاف ٹائم شو کو دیکھا؟ اگر ایسا ہے تو آپ دنیا میں سب سے تیزی سے ترقی کرنے والے مارکیٹنگ ٹولز میں سے ایک کے آئی وٹنس ہیں جس کو سپورٹس اسپانسرشپ بولتے ہیں۔ پی ایس ایل 7 اور بیجنگ ونٹر اولمپکس کا آغاز ہو چکا ہے اور ساتھ ہی ٹاٹا آئی پی ایل 15 کی پلیئر آکشن بھی سٹارٹ ہو گئی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے بیجنگ اولمپکس میں اور ایچ بی ایل پی ایس ایل میں ایتھلیٹس یا کھلاڑی میدان کے اندر ایک دوسرے سے کمپیٹ کر رہے ہیں، بلکہ ویسے ہی لوکل اور انٹرنیشنل برانڈز ملینز ڈالر اسپانسرشپ کی مد میں دینے کے بعد میدان کے باہر ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ پر لوگوں کا دل جیتنے کے لیے اور ان کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے کانٹیسٹ کر رہے ہیں۔ سپورٹس ایونٹ کی اسپانسرشپ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اب تک سپورٹس اسپانسرشپ کی مارکیٹ میں تقریباً $58 بلین اضافہ ہو چکا ہے، اور یہ توقع کی جا رہی ہے کہ یہ مارکیٹ 2028 تک بڑھ کر تقریباً 90 ارب امریکن ڈالر تک پہنچ جائے گی۔ ٹائٹل اسپانسرشپ کے لیے اتنی بھاری رقم کیوں؟ بڑے بڑے برانڈز آفیشیل اسپانسرز بننے کے لیے اربوں ڈالر کیوں ادا کر رہے ہیں؟ آئیے پہلے ویوو کی مثال لیتے ہیں۔ ویوو جو کہ آئی پی ایل کا ٹائٹل سپانسر بننے سے پہلے انڈیا کی اتنی زیادہ مقبول کمپنی نہیں تھی، لیکن آئی پی ایل کے ٹائٹل سپانسرشپ کے رائٹس حاصل کرنے کے بعد ویوو 27% آف لائن مارکیٹ شیئر کے ساتھ انڈیا میں سب سے زیادہ ایمرجنگ برانڈ اور معروف سمارٹ فون پلیئر بن کے سامنے آیا۔ نیکسٹ ہماری مثال ہے ڈریم 11، جس نے $30 ملین کی بھاری رقم دے کے آئی پی ایل 2020 کے ٹائٹل سپانسرز کے حقوق حاصل کیے۔ صرف ٹورنامنٹ کے محدود عرصے کے دوران اپنے رجسٹرڈ یوزرز کی تعداد 100 ملین سے زیادہ کرنے میں کامیاب رہے۔ اور اگر ہم پی ایس ایل پر بات کریں تو ایچ بی ایل نے اگلے 4 سالوں کے لیے $22.2 ملین کی بھاری رقم ادا کر کے پی ایس ایل کے 4 سیزن کے ٹائٹل سپانسرشپ کے حقوق حاصل کیے ہیں، جو کہ پچھلے سپانسرشپ معاہدے سے 55% زیادہ ہیں۔ 55% کا اضافہ، لیکن کیوں؟ کیونکہ پی ایس ایل اب بذات خود ایک بہت بڑا برانڈ بن چکا ہے، اور اگر ہم ایچ بی ایل پی ایس ایل کی اچیومنٹس کو دیکھیں اور ان کی ہسٹورک سکسیس کو دیکھیں تو ایچ بی ایل پی ایس ایل 3 نے جو میڈیا ویلیو پیدا کی وہ $120 ملین کے قریب تھی، اور ایچ بی ایل کو میڈیا ویلیو کی کل قیمت کا ہاف یعنی کہ $67.3 ملین سے زیادہ ملا۔ اس کے علاوہ ایچ بی ایل پی ایس ایل 2 کے بعد حبیب بینک کے اکاؤنٹ کھولنے میں 110% اور موبائل ایپ رجسٹریشن میں 73% اضافہ ریکارڈ ہوا۔
लिहाजा हिस्टोरिकली देखें तो टाइटल स्पॉन्सरशिप को स्पोर्ट्स स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम में क्राउन ज्यूल की हैसियत हासिल है। ताहम ऐसा लगता है कि मार्केटिंग का ये सुनहरी असूल 2012 में लंदन ओलंपिक्स में होने वाले ओलंपिक खेलों में उल्टा पड़ गया, और कैसे नाइकी ने नॉन स्पॉन्सर होने के बावजूद वो कुछ करने में कामयाब रहा जो बड़े बड़े ब्रांड्स टाइटल स्पॉन्सर्स होने के बावजूद भी ना कर पाए। ये कैसे हुआ? जिसने मार्केटिंग के तमाम स्ट्रैटेजी को ज़मीन पे लाके फेंक दिया। नाइकी शू मेकिंग कंपनी ने ये कैसे किया? इनकी लाजवाब मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ने मुझे इंस्पायर किया कि मैं ये वीडियो बनाऊं। 2012 में लंदन ओलंपिक्स शुरू होने वाले थे। दुनिया भर के ब्रांड्स दुनिया के इस सबसे बड़े स्पोर्ट्स इवेंट के ऑफिशियल स्पॉन्सर्स बनने और इस इवेंट से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करने की जंग में शामिल थे, जिसमें एडिडास और नाइकी सरफहरिस्त थे। एडिडास इस जंग में कामयाब रहा, जिसने नाइकी को हराते हुए $150 मिलियन की खतीर रकम खर्च करके लंदन ओलंपिक्स 2012 के ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप राइट्स हासिल किए, जिससे एडिडास को मार्केटिंग विजिबिलिटी, ऑडियंस सक्सेस के लिहाज से दीगर कंपनियों के मुकाबले में शुरू से ही बरतरी हासिल हो गई। एडिडास और अपने स्पॉन्सर्स की बर्तरी को कायम रखने के लिए लंदन ओलंपिक्स कमेटी ने नॉन स्पॉन्सर्स ब्रांड्स के लिए मार्केटिंग के सख्त कवानीन भी जारी किए। मिसाल के तौर पे नॉन स्पॉन्सर्स को अपने कमर्शल्स में ओलंपिक्स रिंग या ओलंपिक्स लोगो इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं थी। इसके साथ साथ इन्हें अपने कमर्शल्स में लंदन ओलंपिक्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करने की इजाज़त भी नहीं थी, और लंदन सिटी के अंदर कमर्शल फिल्माने पर भी पाबंदी थी। दरअसल में से दो अल्फाज खेल 2012 को एक साथ इस्तेमाल करना भी नॉन स्पॉन्सर्स के लिए ममनू था। सख्त मार्केटिंग कवानीन के बावजूद नाइकी ने इसमें 3 लूप होल्स तलाश किए और अपनी मार्केटिंग कैंपेन का आगाज़ किया, जिसका नाम था फाइंड योर ग्रेटनेस, अपनी अज़मत तलाश करें, जो बाद में दुनिया की तारीख की सबसे तख्लीकी मार्केटिंग कैंपेन में से एक करार पाई, जिससे साबित हुआ कि नाइकी के पास मार्केटिंग के बारे में पूरी दुनिया को सिखाने के लिए बहुत कुछ है। इस कैंपेन के नतीजे में नाइकी ने एडिडास पर बिना $150 मिलियन खर्च किए फतह हासिल की, और जिसके नतीजे में नाइकी की आमदनी में $506 मिलियन का रिकॉर्ड इजाफा हुआ। सबसे अहम बात यह है कि इस कैंपेन ने नाइकी की मेंबरशिप बेस में 55% तक का इजाफा किया। तो आइए अब बढ़ते हैं लूप होल्स की तरफ। पहला लूप होल ये था कि ओलंपिक्स कंपनी ने एथलीट्स के जूतों के इंतखाब करने पर कोई पाबंदी नहीं लगाई थी, और एथलीट्स को ये इजाज़त थी कि वो किसी भी ब्रांड का जूता पहन सकते हैं। चुनांचे नाइकी ने 400 से ज़ायद खिलाड़ियों से जूते पहनने के लिए राब्ता किया, और इसके साथ एक और ज़बरदस्त इक़दाम उठाया कि आम तौर पर खिलाड़ी जो नाइकी की मसनूआत पहनते हैं, इसके साथ जूते हमेशा एथलीट की वर्दी से मैचिंग होते थे। लेकिन इस साल नहीं, इस साल शूज़ खिलाड़ियों की वर्दियों के बिल्कुल बरअक्स थे। वो थोड़ा बोल्ड नियोन ग्रीन कलर के थे, और इनको वॉल्ट का नाम दिया गया था। नाइकी ने इस जूते को बनाने के लिए कलर साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया। इस नए जूते को इस तरह डिज़ाइन किया गया था कि ये हर इंसान की नज़रों में आसानी से आ जाता था। और दूसरी खामी ये थी कि लंदन इन यूके के अल्फाज को नॉन स्पॉन्सर्स अपने कमर्शल्स में इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, ना ही लंदन शहर के अंदर कोई कमर्शियल शूट किया जा सकता था। लिहाजा नाइकी ने स्मॉल लंदन सिटी नाइजीरिया, लिटिल लंदन टाउन जमैका, लंदन टाउन ओहायो, लंदन स्कूल कतर और रॉयल लंदन हॉस्पिटल जिम समेत 28 दीगर मुकामात पर अपने कमर्शियल की शूटिंग की। तीसरा लूप होल ये था कि नॉन स्पॉन्सर्स को अपने कमर्शियल्स में ओलंपियंस को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं थी। इसके लिए नाइकी ने अपनी शानदार स्ट्रैटेजी अपनाते हुए अपनी कैंपेन में 9 उम्र बच्चों को सफ़ीर के तौर पर हायर किया। आगे बढ़ने से पहले आइए ऐड पर नज़र डालते हैं। There are no grand celebrations here. No speeches, no bright lights. But there are great athletes. Somehow we've come to believe that greatness is reserved for the chosen few, for the superstars. The truth is, greatness is for all of us. This is not about lowering expectations. It's about raising them for every last one of us. Because greatness is not in one special place. And
it is not in one special person. Greatness is wherever somebody is trying to find it. फाइंड योर ग्रेटनेस कमर्शियल्स में वॉइस ओवर इस बात पर रोशनी डालता है कि ग्रेटनेस सिर्फ सुपरस्टार एथलीट के लिए मखसूस नहीं है, बल्कि ये वो चीज़ है जो हर कोई हासिल कर सकता है। चाहे इसका मतलब लंदन कनाडा में पहली मैराथन ख़त्म करना हो, या कतर के लंदन स्कूल में फ़ुटबॉल के पिच पर जश्न मनाने वाली एक खातून मुस्लिम टीम का हो। कमर्शियल में बयान करने वाला इस बात पर जोर देता है कि लोगों को अजीम बनने के लिए दूसरों की ग्रेटनेस की डेफिनेशंस पर अमल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, इसकी बजाय इन्हें अपना रास्ता बनाकर अपनी ग्रेटनेस खुद पैदा करनी चाहिए। एक दूसरे इश्तहार में एक ज़्यादा वज़नी नौउम्र आहिस्ता आहिस्ता गांव की सड़क पर जॉगिंग करता लड़का दिखाई देता है। आप इसके कदमों की आवाज़ को सुन सकते हैं जब वो अपनी सख्त कोशिश के नतीजे में सड़क पर आगे बढ़ता है, और गहरी सांसों की आवाज़ के साथ जैसे ही जॉगर तस्वीर में नज़र आता है, कमर्शियल में बयान करने वाला हमें बताता है कि अज़मत मुंतखब चंद लोगों के लिए मखसूस नहीं है, और हमारी हौसला अफजाई करता है कि हम भी अजीम हो सकते हैं। आइए दूसरे ऐड पर भी नजर डालते हैं। दोनों कमर्शियल्स का Greatness, it's just something we made up. Somehow we've come to believe that greatness is a gift reserved for a chosen few, for prodigies, for superstars, and the rest of us can only stand by watching. You can forget that. Greatness is not some rare DNA strand. It's not some precious thing. Greatness is no more unique to us than breathing. We're all capable of it. All of us. दोनों कमर्शियल्स का इख्तिताम इस बात पर होता है कि ग्रेटनेस वो है जहां कोई इसे तलाश करने की कोशिश करता है। अगरचे ये कमर्शियल नाइकी की तरफ से एक शानदार इक़दाम था जिसका मकसद मार्केटिंग की दुनिया में और लोगों की ज़िंदगियों में हलचल पैदा करना था, जिसमें नाइकी 100% कामयाब रहा, और आखिरी स्ट्रैटेजी ये थी कि ओलंपिक्स के दौरान देखे जाने वाले जितने भी प्रोडक्ट्स थे वो नाइकी के आउटलेट्स पर अवेलेबल थे। नतीजतन फाइंड योर ग्रेटनेस कैंपेन ने YouTube पर 5 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हासिल किए, ट्विटर पर ओलंपिक से वाबस्ता 16,000 से ज़्यादा ट्वीट्स हासिल की, सोशल मीडिया पर 59,000 फॉलोअर्स बनाए, और सबसे खूबसूरत बात 37% अमरीकियों ने एडिडास की बजाय नाइकी को टाइटल स्पॉन्सर माना। इसके मुकाबले में एडिडास को कैंपेन टेक द स्टेज में YouTube पर 3.2 मिलियन से ज़ायद व्यूज़ हासिल किए, ट्विटर पर ओलंपिक से वाबस्ता 9,000 ट्वीट्स मिली, सोशल मीडिया पर 12,000 फॉलोअर्स, और सिर्फ 27% ने कहा कि एडिडास टाइटल स्पॉन्सर था। यकीनन नाइकी ने बिना स्पॉन्सरशिप $150 मिलियन खर्च किए, एडिडास से ज़्यादा बेहतर मार्केटिंग की और एडिडास को मात देने में कामयाब रहा। नाइकी की हिकमत अमली ये थी कि वो अपने प्रोडक्ट्स को आम लोगों के साथ मुंसलिक करना चाहता था, ना कि एडिडास की तरह जो अपने प्रोडक्ट्स को स्पेशलाइज्ड खिलाड़ियों के साथ मुंसलिक करना चाहता था। कहा जाता है कि लोग आपकी बातों को भूल जाते हैं, लेकिन वो कभी नहीं भूलते कि आपने इन्हें किस तरह महसूस करवाया। इस केस में नाइकी ने लोगों को इंस्पायरेशन का एहसास दिलाने की पूरी कोशिश की। नाइकी के इस कमर्शियल ने अज़मत की लोगों की बनाई हुई डेफिनेशंस को चैलेंज किया और एहसास दिलाया कि अज़मत या ग्रेटनेस कोई जीनियाती खसूसियत नहीं है और ना ही मुंतखब चंद लोगों की मिरास है। तो याद रखें, ग्रेटनेस कोई नायाब DNA स्ट्रैंड नहीं है, कोई एक निज़ाम या रास्ता का नाम नहीं है जो अज़मत की तरफ जाता हो, बल्कि हम सब इसकी सलाहियत रखते हैं। सेल्स और मार्केटिंग इंडस्ट्री में अपने 16 साल के तजर्बे में मैंने हमेशा लोगों को
ट्रेनर होने के नाते यही सिखाया कि अपनी अज़मत तलाश करें और फिर दूसरों को इनकी अज़मत तलाश करने में मदद करें। एक बड़ा मशहूर कौल है कि खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं, लेकिन ये बात याद रखें, खुदा उन लोगों की ज़्यादा मदद करता है जो दूसरों की मदद करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप दूसरों की मदद करें ताकि वो भी अपनी ग्रेटनेस तलाश कर पाएँ, तो इस वीडियो को इनके साथ शेयर करें। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें। खुदा आपका हामी व नासिर हो।